Hello and welcome, friends. So, today we are in our 24th episode because 22 chapters for 11th standard, and this is the second chapter from 12th standard. It is reproduction in flowering plants. So, as you know, chapter is too much important from NEET examination point of view. Now AMC is no more, otherwise its importance in AMC is also good enough. So point is that what I want to say, that number of question from this chapter is almost double as compared to the previous chapters. So we have discussed so far 23 chapters. So almost each and every chapter has got 30 or 35 question at the most, highest at the peak. Okay, but with this chapter, point is that there are 60 questions, so it is just doubling the amount. So uh, today's session I've decided to have it uh, in a straightforward manner, means I will explain each and every answer for each and every question. Okay, now what will happen if for 60 question, if I go on asking you the your answer, you will spend some 30 seconds, then you will answer, then I will appreciate it. So every day we see for 30 question, by that manner we take almost 55 to 60 minutes, means an hour or sometime even more. Okay, so if we follow that method for these 60 questions, then I think it will take almost 2 hours or even few more minutes over that, means it will be plenty of time wastage. So I hope you can understand today's problem. So that is why I am releasing this kind of video today. Welcome all of you. Now individually I'm not going to mention anybody, so all of you are equally welcome. Okay, everybody of you is valuable for me. Okay, so without wasting any more time, let us start the session. So here we come on the very first question. So this question is from 2017, 2017 का ये क्वेश्चन है. So question is, attractants and rewards are required for. So entomophily, hydrophily, cleistogamy, anemophily. So attractants and reward. So let me pick up the right color pen. Just a second. Okay. So attractants and rewards are required for. So answer is quite obvious. Many of you might have thought over it. It is entomophily, because hydrophily it is done by water, so it is non-living thing. Pleistogamy, here there is no pollinating agency, because this is the type of kind of contrivance for that self-pollination. And anemophily, here wind is there. So water or wind, they need not to be awarded, or they do not want any kind of return. And whereas in cleistogamy there is no agency involved. So answer is entomophily, that is pollination with the help of insect, and insect need to be paid with such attractant and rewards. Okay, so answer is A. Second question, flower which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by. So what about these flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence? ठीक है, तो ऐसे फ्लावर की जिनमें ओव्यूल सिंगल है, ठीक है, इन द ओवरी, सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस. तो ऐसे फ्लावर्स की जिनमें ओव्यूल ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल है एंड दे आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, तो उनकी जो पूरी पैकिंग है फ्लावर्स की वो इन्फ्लोरेसेंस में की वाली. तो ऐसे इसका पॉलिनेशन कौन करवाता है? सो ऑप्शंस आर बी, विंड, बैट एंड वाटर. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना कि सपोज अगर एक, मतलब ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल है, ठीक है, और पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इकट्ठा आने वाला है, मीन्स फ्लावर्स कंडेंस फॉर्मेट में एक ही जगह पर कई सारे फ्लावर्स तैयार हुए, तो सोचने वाली बात है कि ऐसे टाइम पे कौन हो सकता है पॉलिनेटिंग एजेंसी, हु विल पॉलिनेट दिस वन. नाउ आंसर इज विंड. इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? विंड. लेकिन वो कैसा होगा, इसका जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है,
नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन विंड पॉलिनेट्स, जब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो क्या होता है, पोलन ग्रेन रैंडमली एक फ्लावर से निकलकर दूसरे फ्लावर पर जाने वाले हैं। ठीक है, अब अगर एक ही प्लांट पर पूरे फ्लावर स्कैटर्ड होते तो क्या होगा, तो हर एक फ्लावर पे जाने के लिए उतना विंड इफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर पूरा के कई सारे फ्लावर एक इन्फ्लोरेसेंस में कॉम्पैक्टली अरेंज होते तो चांसेस होता है, चांस बनते हैं वहाँ पर कि जो है पोलन ग्रेन हर एक फ्लावर को उस इन्फ्लोरेसेंस में के हर एक फ्लावर को मिल जाए। ठीक है, अगर इंसेक्ट की बात है तो इंसेक्ट अलग अलग फ्लावर पर बैठ सकता है क्योंकि उसको उसके रिटर्न में रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं कुछ ना कुछ। लेकिन जब विंड होता है तो विंड के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि उसे तो कुछ ना लेना है ना देना है, वो तो अपने आप बहती हुई हवा है और उसे जो है वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन हो, इसलिए अगर विंड रहता है तो इन्फ्लोरेसेंस कॉम्पैक्टली अरेंज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो राइट आंसर इज विंड। अब यहाँ पर बी और बैट ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब जब वाटर की बारी आती है तो वाटर में भी अगर हम देखते हैं तो वाटर में भी कई सारे मतलब जितने भी केसेस है हाइड्रोफिली में, तो उनमें जो है इस तरीके की फ्लावर के स्ट्रक्चर नहीं है जैसे सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी। ठीक है, ये जो हमें देखने को मिलता है सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, ये अगर हम पोएसी या ग्रामिनी फैमिली में अगर देखते हैं तो हमें यही सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे जिस फ्रूट को हम कैरियोप्सिस भी बोलते हैं, सिंगल सीड इनसाइड द फ्रूट, एंड हियर फ्रूट एंड सीड दे आर नॉट सेपरेबल और इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, उनको मतलब ये फ्रूट है और ये सीड है ऐसा हम नहीं बोल सकते। ओके, सो हियर विंड पॉलिनेशन विच इज कॉमन इन द ग्रासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। अब डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट है, अब मोनेशियस और डाइशियस का मतलब अगर पता है तभी इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। सो डाइशियस मोनेशियस माने क्या, मोनेशियस माने अगर फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक हो गया वो, और डायोशियस माने क्या कि जिसमें फ्लावर्स अलग अलग टाइप के फ्लावर एक प्लांट पर है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, एक मोनेशियस माने एक प्लांट पे दोनों टाइप के फ्लावर्स। ठीक है, अब डायोशियस की अगर बात की जाए तो क्या होगा, इधर एक प्लांट पर एक टाइप का फ्लावर और दूसरे प्लांट पर दूसरे टाइप का फ्लावर। तो इसमें क्या प्रिवेंट हो सकता है, सो ऑप्शंस आर ऑटोगैमी, गेटिनोगैमी, गेटिनोगैमी, जीनोगैमी, लिस्टोगैमी, जीनोगैमी, एंड फाइनली ऑटोगैमी, जीनोगैमी। तो ये थोड़ा इमेजिनेशन का भी है और थोड़ा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो भी हो सकता है ये। तो ये एक प्लांट है से प्लांट वन, ये दूसरा प्लांट है से प्लांट टू। ठीक है, अब इस पर जो है मेल फ्लावर है और इस पर जो है फीमेल फ्लावर है, दोनों एक ही स्पीशीज के। तो देखो इस पर जितने भी फ्लावर है मेल फ्लावर है और इस पर जितने भी फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर है, तो ये खुद के खुद को तो पॉलिनेट नहीं कर सकता। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये खुद का खुद सेल्फ पॉलिनेशन करवाए, तो ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी क्योंकि फ्लावर में एक ही सिंगल सेक्स है, और एक ही प्लांट का भी फ्लावर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर को भी पॉलिनेट नहीं कर सकता क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट उसके फ्लावर एक ही सेक्स के है। ठीक है, दैट इज व्हाट डायोशियस मींस, इजंट इट। तो उसे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक चांस है और वो कौन सा है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर दोनों चीजें प्रिवेंट हो जाएगी, ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी। So what is autogamy? Transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower. And what is geitonogamy? Different flower on the same plant. ठीक है, तो डायोशियस फ्लावर दोनों कंडीशन प्रिवेंट कर देगा, ऑटोगैमी एज वेल एज गिटोनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो चार स्टेटमेंट दिए वाले उसमें का कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर यफ लिख देना चाहिए। क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर फर्स्ट, टैपेटम हेल्प्स इन द डेhiscence ऑफ एंथर, इज इट सो। टैपेटम किस लिए होता है, वो तो इनर मोस्ट लेयर है। डेhiscence में एंडोथेसियम काम आ सकती है, आउटर लेयर काम आ सकते हैं, टैपेटम काम में नहीं आ सकता है। ठीक है, टैपेटम तो जो है वो एक तो पोलन ग्रेन को वो स्पोरोपोलिन प्रोवाइड करता है और दूसरा उनकी न्यूट्रिशन की जिम्मेवारी लेता है। सो दिस इटसेल्फ इज द फॉल्स वन। ओके, फिर भी रीड करते हैं बाकी के। एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये भी तो हमने वही तो बोल रहे थे, तो ये सही स्टेटमेंट है लेकिन गलत आंसर है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज, ये भी सही है, एज इट इज दिस स्टेटमेंट इज देयर इन एनसीईआरटी। देन लास्ट ऑप्शन क्या है, स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। अब ये चीज़ भी पढ़ने को मिलती है एनसीईआरटी में कि पोलन ग्रेन आज के डेट में क्या किए जा रहे हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर में उनको प्रिजर्व किया जा रहा है ताकि वो फ्यूचर में प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए यूज़ किए जा सके। जैसे
सीमेन प्रिजर्व किया जाता है, स्पर्म्स प्रिजर्व किया जाता है स्पर्म बैंक में, उसी तरीके से भी पोलन भी प्रिजर्व किए जाने लगे. सो ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट दे आर ट्रू, बट व्हाट अबाउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? It is first one, because question is asking for false one, and tapetum do not help in the dehiscence. It could be endothelium or that outer layers. Okay, next question, question number 5. Which of the following statement is not correct? अब फिर एक बार उसी तरीके का क्वेश्चन कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो फर्स्ट वन, pollen grain of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style. ठीक है, क्या कहता है पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कि कई सारे स्पीशीज के पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर. ठीक है, मतलब एक फ्लावर के स्टिग्मा पर कई सारे स्पीशीज के पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकते हैं, बट ओनली वन पोलन ट्यूब, लेकिन एक ही पोलन ट्यूब जो कि उसी स्पीशीज की है वही स्टाइल के अंदर जा सकती है. ऐसा कहना है पहले स्टेटमेंट का. दूसरा क्या है, इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड पोलन और नेक्टर रॉबर्स. तो ऐसे भी कुछ इंसेक्ट होते हैं कि जो नेक्टर या पोलन खा तो जाते लेकिन पॉलिनेशन नहीं करा के देते, तो इनको बोला जाता है पोलन रॉबर्स. तीसरा स्टेटमेंट है, पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल. तो पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा पर और पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उस पर रेगुलेशन किस चीज़ का है? इट इज़ केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन. तो पोलन ग्रेन के कुछ केमिकल कंपोनेंट जो पिस्टिल माने स्टिग्मा के या फिर जो स्टाइल है उसके जो केमिकल कंपोनेंट है इनके इंटरेक्शन से वो रेगुलेशन होता है. ऐसा कहना है सी का. लास्ट क्या है, सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पीशीज. और कुछ रेप्टाइल्स भी है जो पॉलिनेशन ऐसा पॉसिबल करवा सकते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट बोल के वो काम कर सकते हैं. तो डी से देखते हैं. देखिए, स्नेक्स जो रेप्टाइल्स में आते हैं वो पॉलिनेशन की एजेंसी करके काम कर सकते हैं, हम उसे ओफियोफिली भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आंसर हमें चाहिए फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन में जो है नॉट करेक्ट पूछा गया है. तो फिर एक बार यहाँ पर फॉल्स लिख देते हैं. सी वाला क्या है, पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ रेगुलेटेड बाय केमिकल, ये भी बिल्कुल सही है. उनका जो कंटिन्यूस डायलॉग है सिंस सेंचुरीज और मिलियंस ऑफ ईयर्स, डायलॉग माने उनमें जो जान पहचान बन चुकी है वो किस वजह से बनी है? इट इज़ ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द टू. सेकेंड, इंसेक्ट दैट कंज्यूम, ये पोलन रॉबर वाला कॉन्सेप्ट ये भी बिल्कुल सही दिया है. मतलब काम तो कुछ करना है नहीं, लेकिन नेक्टर या पोलन खा जाना है, तो वो रॉबर चोरी हो गया. अब जो पहला स्टेटमेंट है वही यहाँ पर आंसर है. और क्या दिया उसमें, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रो इनटू द स्टाइल. तो यहाँ पर जो है ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज, एक स्पीशीज की एक ही पोलन ट्यूब इसके अंदर जाती है, इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है. लेकिन पहला जो पार्ट है वो बिल्कुल गलत है. कई सारे स्पीशीज के पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा पर, यह कहना ही गलत है. सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशीज का पोलन ग्रेन वहां पर जर्मिनेट हो सकता है. एक ही पोलन ग्रेन नहीं, लेकिन एक ही स्पीशीज के पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकते हैं, मेनी स्पीशीज के नहीं हो सकते. ठीक है, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया और हमारा यही आंसर बन गया, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट के लिए पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी. ठीक है, तो ऐसा कौन सा है कि जिसे पॉलिनेटर तो लगता है, मतलब एजेंसी की तो जरूरत है, लेकिन वो ऑटोगैमी के जैसा ही है जेनेटिकली. ऑप्शंस आर जीनोगैमी, अपोगैमी, क्लिस्टोगैमी एंड गाइटेनोगैमी. तो देखिए, जेनेटिकली वो क्या है, ऑटोगैमी से सिमिलर है, लेकिन फिर भी उसे पॉलिनेटर की ज़रूरत है. अब एक फ्लावर के अंदर ही उसे अगर ट्रांसफ़र करना है तो फिर तो पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होगी. अगर फ्लावर चेंज करना है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जाना है, तभी उसे क्या लगेगी, एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी. तो अभी जिसे हमने देखा था, गाइटेनोगैमी इज़ द राइट आंसर. आई होप ये आप समझ गए होंगे. गाइटेनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने के लिए, भले ही वो सेम प्लांट है, अब सेम प्लांट होने की वजह से जीनोटाइप सेम है, तो जेनेटिकली क्या हो गया, ऑटोगैमी हो गई, लेकिन फंक्शनली क्या हो गया, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया. देन आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. फिर एक बार उसी तरीके का क्वेश्चन, नॉट ट्रू वाला ही क्वेश्चन है. ठीक है,
क्या है ऑप्शन फिर? पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकाइल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल। क्या हम इसे नकार सकते हैं? कैन वी डिनाई दिस स्टेटमेंट? नो। तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फॉल्स। सेकेंड क्या बोल रहा है? द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैड सीक्रेट फोल ओडर टू अट्रैक्ट देम। तो ये तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी का बिल्कुल जैसे का वैसा उठा करके डाला है, विदाउट इवन चेंजिंग माइन्यूट थिंग्स। देन honey is made by bees by digesting pollen collected from flowers। तो ये है ऑप्शन सी। क्या कहता है वो? हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर्स। तो ये स्टेटमेंट के बारे में हमें सोचना होगा। डी स्टेटमेंट क्या है? पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप। ये स्टेटमेंट भी मैं कहूँगा कि जैसे को वैसा उठा करके यहाँ पर क्वेश्चन के लिए यूज किया है। अब देखिए तीसरा जो है, पोलन इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन। अब पोलन को डाइजेस्ट करके नहीं, नेक्टर की अगर बात होती तो ठीक होता, ठीक है, और डाइजेस्ट करके कहना ये काफी हद तक गलत होगा, राइट? सो द राइट आंसर इज हियर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइलम इज अ स्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइलम है जो एक स्कार है, स्कार माने निशान है, ऑन द। अब ये कहां पर है ये स्कार? ठीक है, so options are fruit where it was attached to the pedicel, second fruit where style was present, third seed where micropyle was present, and last seed where funicle was attached। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी। देखो ये कई सारे वर्ड है, मैं कई बार स्टूडेंट को ये चीज़ समझाते रहता हूँ, ये आपको वर्ड बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। कौन से ये? एक है पिटियोल, दूसरा है पेडिसिल, और तीसरा है पेडंकल, और एक इसमें जोड़ सकते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, तो पिटियोल क्या है? इट इज स्टॉक ऑफ द लीफ। पेडिसिल क्या है? स्टॉक ऑफ द फ्लावर। पेडंकल क्या है? स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और फ्यूनिकल क्या है? इट इज स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, तो जब हम ओव्यूल की डायग्राम बनाते हैं ऐसे, तो ये क्या बन गया इसका? फ्यूनिकल, एनाट्रोपस ओव्यूल के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाइलम क्या चीज़ है, राइट? सो देखो भी कैसा होता है कि ये जब हम ओव्यूल की डायग्राम पूरी अगर बनाने लगे, तो ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, यहाँ पर फ्यूनिकल के अटैचमेंट का एक निशान बन जाता है, स्कार बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। सो हाइलम इज अ स्कार वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से ऐसे फ्लोरल रिवॉर्ड्स है जो एनिमल पॉलिनेटर को दिए जाते हैं? नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स, कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर। तो अब ये चीज़ हमें समझनी होगी, रिवॉर्ड की बात हो रही है। ठीक है, मतलब आने के बाद उसे कुछ ना कुछ उसका रिटर्न, उसका कुछ ना कुछ कीमत उसकी देनी, उसे बुलाने के लिए अट्रैक्ट करना, वो रिवॉर्ड नहीं कहलाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल ऑब्वियस आंसर है नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। तो ये वो चीज़ है जो रिवॉर्ड के तौर पर एनिमल कंज्यूम कर जाते हैं, और ये कंज्यूम करने के लिए वो आते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली वो पॉलिनेशन भी करा के जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोरल रिवॉर्ड। अब फ्रेग्रेंस, ये जो चीज़ है वो क्या है? अट्रैक्ट करवाने के लिए। ये प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट, ये यहाँ पर नहीं होता है, मतलब इन चीज़ों के लिए नहीं। स्टिग्मेटिक एक्सुडेट जो चीज़ है वो क्या है? वो हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन को प्रमोट करने के लिए, ना कि इंसेक्ट के कंजम्पशन के लिए। कलर एंड लार्ज साइज, ये अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर रिवॉर्ड क्या होता है? जो अट्रैक्ट करवाने के लिए यूज किया जाता है उसे रिवॉर्ड कहा जा सकता है क्या? नहीं, आने के बाद जो उसे मिलने वाला है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलाइफॉर्म अपैरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो फिलाइफॉर्म अपैरेटस किस चीज की फीचर है? न्यूसेलर एम्ब्रियो, अल्यूरोन लेयर, सिनर्जिड, जनरेटिव सेल। सो क्वेश्चन as well as the answer is quite obvious, it is synergids। क्या है इसका आंसर? सिनर्जिड। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पर ऊपर 3 एंटीपोडल निकाल देते हैं,
यहाँ पर एक फीमेल गैमेट, उसके तो बाजू में जो बताते हैं वो क्या होते हैं, सिनर्जिड। तो ये सिनर्जिड को ऐसे बाहर की तरफ से ऐसे थिकनिंग बताते हैं अलग से। सो दीज आर कॉल्ड एज फिलाइफॉर्म एपरेटस, इजंट इट। तो ये सिनर्जिड के फिलाइफॉर्म एपरेटस है जो क्या करते हैं, पोलन ट्यूब जो ऐसी आ रही है तो उसे गाइड करते हैं कि यहां से तुम्हें ग्रो करना है, यहां से तुम्हें आगे बढ़ना है। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करने वाली चीज माने फिलाइफॉर्म एपरेटस, सो इट इज द पार्ट ऑफ दिस सिनर्जिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटेनोगैमी इन्वॉल्व्स, फिर एक बार वही एरिया। देखो मैं कई बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको क्वेश्चनेबल एरिया समझ में आने लगता है। तो आप देख रहे हो गेटेनोगैमी पर कितनी बार सवाल हो चुका है, 2017 से लेकर के 14 का भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 2-3 बार तो आके गया और शायद आगे भी कितने बार आएगा। सो क्वेश्चन, गेटेनोगैमी इन्वॉल्व्स, क्या है गेटेनोगैमी, अभी तो बोला था, transfer of pollen grain from anther to the stigma of a different flower on same plant. So fertilization of a flower by the pollen from another flower of the same plant. दूसरा, fertilization of a flower by the pollen from the same flower. तीसरा, fertilization of a flower by pollen from a flower of another plant in same population. और चौथा, fertilization of a flower by pollen from a flower of another plant belonging to distant population. So very obvious answer is first one. ठीक है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होने वाला पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या बोल सकते हैं, गेटेनोगैमी। ठीक है, बाकी की चीजें डिस्कस करने की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है। अगर सेम फ्लावर है तो हम उसे ऑटोगैमी बोलते हैं। ठीक है, सेम पॉपुलेशन में है तो हम उसे हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं। डिस्टेंट पॉपुलेशन मतलब अलग स्पेशीज है तो हम उसे हाइब्रिडाइजेशन जीनोगैमी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12, मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन। तो ऐसा मेल गैमेटोफाइट कि जिसमें कम से कम क्या है, सेल्स है, तो वो किसमें है। सो ऑप्शंस आर टेरिस, फ्यूनारिया, लिलियम एंड पाइनस। ठीक है, अब टेरिस कहां से आता है, टेरिडोफाइटा से, और फ्यूनारिया कहां से आता है, मॉस से। ओके, लिलियम कहां से आता है, एंजियोस्पर्म से, और पाइनस कहां से आता है, जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा टेढ़ा करके पूछा गया है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई है। सो आई हैव टू से दैट दिस क्वेश्चन इज अ वेरी स्मार्टली फ्रेम्ड वन। ओके, सो आंसर फॉर दिस वन इज, इट इज लिलियम विच इज फ्रॉम एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही सेल हो सकते हैं, जस्ट 3 सेल। और अगर हम बाकी की बात करते हैं जैसे फ्यूनारिया है या फिर टेरिस है, तो इनमें जो है वो इनके गैमेटोफाइट, अगर टेरिस की बात हो तो यहाँ पर ठीक है स्पोरोफाइट डोमिनेट है, लेकिन गैमेटोफाइट भी एकदम पूरे तरीके से रिड्यूस नहीं हो चुका है। दैट इज वाई इट्स लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इजंट इट। देन फ्यूनारिया की बात की जाए तो यहाँ पर तो गैमेटोफाइट ही स्टेज डोमिनेंट है। पाइनस, जिम्नोस्पर्म, तो ये भी यहाँ पर भी मतलब जो क्या मेल गैमेटोफाइट कहेंगे वो एंजियोस्पर्म से, तो फिर भी बेटर ही है, मतलब ज़्यादा सेल से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो फंक्शन ऑफ फिलाइफॉर्म अपैरेटस, फिर एक बार वही क्वेश्चन फिलाइफॉर्म अपैरेटस पे। सो क्या है, रिकॉग्नाइज सुटेबल पोलन एट द स्टिग्मा, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, प्रोड्यूस नेक्टर एंड गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। जस्ट वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए गाइड करना किसका काम है, फिलाइफॉर्म अपैरेटस। वो किसको बिलोंग करते हैं, वो उन्हें कौन बिलोंग करता है, दैट इज सिनर्जिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू। अब ये मेगास्पोरेंजियम किस चीज से इक्विवेलेंट है, राइट। सो ऑप्शंस आर फ्रूट, सेकंड न्यूसेलस, थर्ड ओव्यूल, चौथा है एम्ब्रियो सैक। सो मेगास्पोरेंजियम, अब ये चीजें हमें अच्छे से समझनी होगी। स्पोरेंजियम मीन्स बैग और पाउच प्रोड्यूसिंग और हैविंग स्पोर इनसाइड। ओके, सो मेगास्पोरेंजियम इज अ पाउच और बैग हैविंग स्पोर इनसाइड। विच काइंड ऑफ स्पोर इट इज, मेगास्पोर। तो अब मेगास्पोर कहाँ पर तैयार होता है, फ्रूट के अंदर तैयार होता है, न्यूसेलस के अंदर, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब यहाँ पे और एक कंफ्यूजन ऐसा है, मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर अगर कहा गया होता, मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर अगर से कहा गया होता तो न्यूसेलस होता उसका जवाब, लेकिन चूंकि सिर्फ और सिर्फ मेगास्पोरेंजियम ऐसा वर्ड यूज किया है, सो आंसर विल बी ओव्यूल, isn't it? So right answer is ovule, because ovule inside it has got megaspore, isn't it? Next question, advantage of cleistogamy.
अब ये क्लिस्टोगैमी दूसरी बार हम देख रहे हैं। क्लिस्टोगैमी पहले क्वेश्चन में भी आया था। क्लिस्टोगैमी क्या होता है, जब फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, बर्ड कंडीशन में उसका पॉलिनेशन हो जाता है एंड फ्लावर डोंट ओपन एट ऑल, सो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इट इज सेड टू बी क्लिस्टोगैमी। इट इज एन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो इसको इंश्योर करने के लिए नेचर का एक एडेप्टेशन है क्लिस्टोगैमी। सो एडवांटेज क्या है इसका, मोर विगरस ऑफस्प्रिंग, नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर, विविपैरी, हाइयर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो सोचने वाली बात है, क्लिस्टोगैमी माने सेल्फ पॉलिनेशन, तो हमें पता है कि जब अगर सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन हो रहा है तो वीगर जो है वो ऑफस्प्रिंग का कम होते जाता है। अगर से क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो वीगर होता है, जिसे हम हाइब्रिड वीगर कहते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली क्लिस्टोगैमी मतलब क्या है, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो विगरस ऑफस्प्रिंग तो नहीं हो सकते इसके, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता जाएगा। नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर, यस वी कैन एक्सेप्ट दिस, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पॉलिनेटर की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर में गिरने हैं, क्योंकि फ्लावर तो ओपन होने वाला है नहीं। विविपैरी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि विविपैरी क्या होता है, सीड जर्मिनेशन के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है, दैट इट इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट itself and fruit is still attached to the mother plant, that is the case of विविपैरी। और लास्ट हाइयर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है तो नहीं हो सकता है। सो राइट आंसर इज नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर इज द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या तैयार होता है, प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, लार्ज बायोमास, लॉन्गर वाइबिलिटी ऑफ सीड्स। सो क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ज़्यादा नहीं। तो क्या बोल सकते हैं अभी हम यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है मतलब क्या है कि दो प्लांट के या जो पोलन ग्रेन है या फिर उनका जेनेटिक मटेरियल है वो मिक्स हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन, ये वाली चीज़ें अगर है तो क्या हो सकता है, डॉर्मेंसी, इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है, कई सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है कि जिनके सीड में डॉर्मेंसी नहीं होती है। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, यस दिस इज पॉसिबल। और ये चीज़ जो है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस में भी आती है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट के इकट्ठा होने की वजह से क्या हो रहा है, हर बार नए कॉम्बिनेशन बनने का चांस होता है, और दिस इज द वे टू प्रोड्यूस वेरिएशन, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर का इवेंट इसमें बन सकता है, गैमेट फॉर्मेशन होते हैं इसमें। गैमेट जो होता है फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस से, मतलब स्पोर के लिए हम बोलते हैं बेसिकली। गैमेट तो वैसे प्लांट में जो है वो माइटोसिस से बनते हैं, लेकिन जो स्पोर भी बन रहे हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तो वहाँ पर जो है मियोसिस के दरमियान जो क्रॉसिंग ओवर होता है पैचिटिन स्टेज में, दैट कैन क्रिएट दिस क्रॉसिंग ओवर दैट कैन लीड टू दिस वेरिएशन। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, लार्ज बायोमास एंड लॉन्गर वाइबिलिटी, ये बाकी जो चीज़ें वो कुछ प्लांट में पाई जाती है, लेकिन जनरल फाइंडिंग जो है, मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन जो है ये है कि वेरिएशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शंस आर स्पोरोजीनस, क्वेश्चन नंबर सॉरी yes 17 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ऑप्शंस आर स्पोरोजीनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, सेकेंड एंडोथेसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, थर्ड टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, एंड लास्ट हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन। तो यहाँ पर सही चीज़ हमें ढूंढनी है, शायद आप लोगों ने सही चीज़ पकड़ भी ली होगी अभी तक, एंड द राइट आंसर इज रिगार्डिंग टैपेटम। अभी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि टैपेटम का फंक्शन उसके प्रोटेक्शन में नहीं होता है, वो कहाँ पर होता है, जो डेवलपिंग पोलन है उसको नरिशमेंट न्यूट्रिशन देने का काम हो सकता है, ठीक है। स्पोरोजीनस टिश्यू मतलब जो स्पोर बना रही है, तो वो हैप्लॉइड हो सकती है क्या, नहीं, इट मस्ट बी डिप्लॉइड। एंडोथेसियम माइक्रोस्पोर बनाता है क्या, नहीं, स्पोरोजीनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। टैपेटम नरिशेस, ये ठीक है। हार्ड आउटर लेयर, इसे इंटाइन बोला जा सकता है क्या, नहीं, वो तो एक्साइन होती है, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट once again, Geitonogamy, Clistogamy, Xenogamy and Chasmogas flower. So Geitonogamy involve pollen and stigma of a flower of different plant. तो अलग अलग प्लांट के स्टिग्मा और फ्लावर होते क्या गिटनोगैमी में, नहीं होते, एक ही प्लांट के होते हैं,
इजंट इट? हालांकि फ्लावर अलग होते हैं लेकिन प्लांट तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट प्लांट कहा गया, तो ये तो गलत हुआ। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा ऑटोगैमस ही होते हैं, क्या ये सही है? लगता तो है, ठीक है, देखते हैं, वैरायटी हमें देखनी होती है। जीनोगैमी ऑकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन, इज इट सो? नहीं, विंड की थोड़ी ना मोनोपोली है, इंसेक्ट भी करा सकते हैं, रेप्टाइल भी करा सकते हैं, पानी भी करा सकता है, तो ये ऐसा ही कहना गलत होगा। कैस्मोगैस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, नहीं ये भी गलत है, कैस्मोगैमस फ्लावर तो ओपन होते हैं, ठीक है, तो सही जवाब फिर ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि फ्लावर अगर ओपन ही नहीं हो रहा है तो उसे ऑटोगैमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर, तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर कब बनते हैं? आफ्टर मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल, डिफरेंशिएशन। आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, इट इज मियोटिक डिवीजन, इजंट इट? मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें कि 3 डीजनरेट होते हैं, एक सर्वाइव करता है कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन, एनिमल वेक्टर की जरूरत पॉलिनेशन में कब होती है, कौन से इसमें? मेज, वेलिस्नेरिया, मलबेरी, कुकुम्बर। अब आप लोग कितना अच्छे से सब चीज़ें याद करते हो उस पर डिपेंड करता है, तो ये चीज़ें मैंने मेरे ख्याल से आपको शॉर्टकट में को मैं इसके शॉर्टकट भी आपको कुछ दिए थे। सो राइट आंसर फॉर दिस वन इज कुकुम्बर, ओके। कुछ जो रिकैप सेशन इस चैप्टर का लिया है वो आपको याद देखना पड़ेगा इसके लिए। सो कुकुम्बर इज द राइट आंसर where animal vectors are required. Next question 21, which of the following statement is correct? फिर एक बार करेक्ट पूछा गया। स्पोरोपोलिनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्पोरोपोलिनिन फेस नहीं कर पाता लेकिन हाई टेम्परेचर को कर पाता है, ऐसा स्टेटमेंट का कहना है। सेकंड, स्पोरोपोलिनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, स्पोरोपोलिनिन का एंजाइम से डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। थर्ड, स्पोरोपोलिनिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। लास्ट, स्पोरोपोलिनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलीज, ठीक है। अब देखना होगा, अब देखो ए और डी के अंदर फाइट है, बी और सी तो अलग है। स्पोरोपोलिनिन का किसी भी एंजाइम से डिग्रेडेशन नहीं हो सकता, ठीक है, तो हमें जो है करेक्ट देखना है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि डिग्रेडेड बाय एंजाइम, सो वी हैव टू से दिस इज फॉल्स। सी क्या कहता है? स्पोरोपोलिनिन मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक, नो नथिंग लाइक दैट, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी है कई सारे, तो इसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब बचा ए और डी, अब ये दोनों में फाइट है, क्योंकि ऊपर का कह रहा है कि वो हाई टेम्परेचर तो सहन कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं। अब देखो कई सारे कैटल जो होते हैं वो पोलन ग्रेन खा जाते हैं, तो क्या होता है कि उनके पूरे गट में से जाने के बावजूद वो पोलन ग्रेन वैसे के वैसे रह जाते हैं, जो कि उनके डंग में से, जैसे काऊ ने अगर खा लिया तो काउडंग में वो जैसे को वैसे मिल सकते हैं हमें, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट लिखा है, तो ये भी बन जाएगा गलत। सो राइट आंसर इज डी, दैट दे कैन विथस्टैंड बोथ हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, तो ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी दोनों कहाँ पर प्रिवेंट होते हैं? तो जैसे अभी एक 2017 का शायद वो क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा था कि अगर डायोशियस है तभी ये चीज़ प्रिवेंट हो सकती है, तो इनमें से डायोशियस कौन है, यही तो सवाल है। सो आंसर इज क्वाइट सिंपल एंड इट इज पपाया, सो ए इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक एंड नॉट इनऑर्गेनिक, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम, तो अभी ये क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व किया था, आंसर इट इज क्वाइट ऑब्वियस, स्पोरोपोलिनिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है, तो हमें यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंसी एजेंट ना होने के बावजूद भी सीड सेटिंग गारंटेड कहाँ पर है, तो ये सिर्फ कहाँ पर हो सकती है? क्लिस्टोगैमस में, तो हमें यहाँ पर इनडायरेक्टली पूछा गया कि क्लिस्टोगैमी का एग्जाम्पल कौन सा है, एंड जिन लोगों का रीडिंग अच्छी है वो ये सब इजीली आंसर दे देंगे, दैट इज कॉमेलिना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का फंक्शन क्या है? इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड एंड जर्मिनेशन, सॉरी, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब एंड रिलीज ऑफ मेल गैमेट, ओके। तो जर्म पोर का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है? तो जर्म पोर होते कहाँ पर है? देखो इमरजेंस ऑफ रेडिकल, ये जो चीज़ है वो माइक्रोपाइल के लिए हो सकती है,
अब ये जर्म पोर कहाँ पर होते हैं? पोलन ग्रेन के ऊपर होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन के ऊपर। एग्जाइम में कुछ जगह पर जहाँ पर रप्चर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसे हम पोलन जर्म पोर करते हैं, तो वहां से पोलन ट्यूब बाहर आ सकती है, राइट। तो ना ही इधर से मेल गैमेट रिलीज होते हैं, और ये ऊपर के जो है वो तो सीड के लिए, ओव्यूल के लिए बताया गया है, राइट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें कई कुछ लोगों को लग सकता है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो, ये ऐसी गलती हो जाती है कई बार, ये नहीं होनी चाहिए। शायद अभी भी आप ये सुनते समय भी कुछ लोगों को लगा होगा कि अरे हाँ ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होना चाहिए। नहीं, जर्म पोर क्या है ये तो पहले समझना होगा, इसलिए हड़बड़ाहट में कभी भी आंसर हमें नहीं टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर एक बार उसी टाइप का क्वेश्चन, तो हमें हमेशा की तरह क्वेश्चन के सामने फॉल्स लिखना होगा। कहाँ पर गया क्वेश्चन, ये फॉल्स, ठीक है। अब पढ़ते, व्हेन पोलन इज शेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। ऐसा कुछ है क्या कि पोलन ग्रेन 2 सेल का होते सब अगर वो निकल गया पॉलिनेशन के लिए तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ है? नहीं है। आई थिंक दिस इटसेल्फ इज फॉल्स। फिर भी पढ़ लेते। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर जब मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट शुरू होता है तो उसकी जो पहले एक सिंगल सेल थी उसमें डिवीजन अनइक्वल होता है, तो एक लार्जर सेल बनती है, एक स्मॉलर, स्मॉलर को हम जनरेटिव बोलते हैं, लार्जर को वेजिटेटिव बोलते हैं। थर्ड क्या है, सी पोलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वायबल फॉर मंथ, ये भी सही है। कुछ प्लांट में है ऐसा कि पोलन ग्रेन की लाइफ महीनों तक है। इंटेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये भी सही चीज है। सो द रॉन्ग थिंग इज फर्स्ट इटसेल्फ, व्हेन पोलन इज शेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 सेल स्टेज नहीं होनी चाहिए, 3 सेल की स्टेज होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल, तो ऐसे इसको कौन पॉलिनेट करता है? मेरे ख्याल से हमने शायद ऐसा क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है और आंसर भी फिर वही होना है। क्या है आंसर, क्या होगा? वेरी ऑब्वियस, इट इज विंड एनिमोफिली पोएसी, ग्रामीनी फैमिली की, ग्रास फैमिली की बात हुई थी, ठीक है। एक ओवरी में एक ही ओव्यूल या फिर कम से कम ओव्यूल, तो इसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा? विंड पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, फिलाइफॉर्म apparatus is a characteristic feature of, once again same kind of question you can say repeated, it is synergids. Next, in which one of the following pollination is autogamous? फिर एक बार वही चीज, 2011 में का क्वेश्चन है। पॉलिनेशन ऑटोगैमी कहाँ पर होता है? गिटोनोगैमी, जीनोगैमी, कैस्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी। तो ऑटोगैमी किसे कह सकते हैं हम? फिर यहाँ पर सिर्फ क्लिस्टोगैमी को कह सकते हैं। देन विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, फिर देखो वही क्वेश्चन, लेग्यूम, लिलीज, ग्रासेस, ऑर्किड, व्हाट कुड बी द आंसर? इट मस्ट बी ग्रासेस, इजंट इट? तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पे हमारा काफ़ी सारा समय जा सकता था, इसलिए आज की लाइव चैट जो है वो बंद रखी है। नेक्स्ट, अभी डबल फर्टिलाइजेशन की क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि डबल फर्टिलाइजेशन पे सिर्फ हमें यहाँ पर एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, मतलब इतने सालों में डबल फर्टिलाइजेशन पर सिर्फ 2018 में एक क्वेश्चन आया था। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विथ, सॉरी, डबल फर्टिलाइजेशन इज, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? सो फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विथ 1 एग, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियर, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, ये क्या आ गया? 1 होगा शायद यहाँ पर, गेट इट करेक्टेड। 1 male gamete of pollen tube with 2 different eggs, or Syngamian triple fusion. So what is the right answer? It is very obvious. It is Syngamian triple fusion. That is what? Double fertilization. What is Syngamy? It is fusion between 1 male gamete and egg, और दूसरा मेल गैमेट उसका फर्टिलाइजेशन पोलर जो न्यूक्लियस सेंटर में के जो आके रुका था सेकेंडरी न्यूक्लियस उसके साथ जो होता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो दोनों को मिला करके क्या हो गया? डबल फर्टिलाइजेशन। सो डी इज द राइट आंसर। अभी यहाँ से आगे क्वेश्चन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पर है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो ओव्यूल। सो फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ पर, सॉरी, किस चीज में डेवलप हो जाता है? सो इज इट एंडोस्पर्म, इज इट एम्ब्रियो सैक, इज इट एम्ब्रियो, और इज इट ओव्यूल? सो यू मस्ट नो दिस थिंग। आर्कीस्पोरियल इनिशियल से जो एमएमसी बनती है उसमें मियोसिस होने के बाद
4 मेगास्पोर बन गए, 4 में के 3 रीजनरेट हो गए, एक बच जाता है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो उसमें आगे चल के माइटोसिस के डिवीजन राउंड्स हो जाते हैं, 3 राउंड। ठीक है, तो उससे क्या बनने वाला है? इट इज एम्ब्रियो सैक, इजंट इट, जिसमें 3 जो है एंटीपोडल है, 3 नीचे के साइड में 2 सिनर्जिड, एक फीमेल गैमेट है और सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक फंक्शनल मेगास्पोर से ही तो बना है। सो दैट इज द एम्ब्रियो सैक। ओके, नेक्स्ट, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन मेज, कैस्टर, व्हीट, पी। ओके, अब नॉन अल्ब्यूमिनस सीड की बात हो रही है। नॉन अल्ब्यूमिनस माने क्या? जिसका एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है। अब एंडोस्पर्म नहीं रहने वाले सीड कौन से होते हैं? तो जिनके एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म खा लिया। अब एम्ब्रियो एंडोस्पर्म कब खा लेते हैं? दिस इज डन इन डाइकॉट्स, क्योंकि उनका जो फूड है, रिजर्व फूड, वो एंडोस्पर्म में नहीं बल्कि कहाँ पर है? कॉटलेडॉन में है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हीट मोनोकॉट, ये तो कंपलसरी एंडोस्पर्मिक है। मेज मोनोकॉट, ये भी कंपलसरी एंडोस्पर्मिक यानी अल्ब्यूमिनस है। कैस्टर है डाइकॉट लेकिन एक्सेप्शनल केस है। सो राइट आंसर इज पी। सो पी इज द राइट आंसर, नॉन अल्ब्यूमिनस। नेक्स्ट, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। ठीक है, अब पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है? ऑप्शंस आर हैविंग नो रिजर्व फूड, being a diploid tissue, its formation by fusion of secondary nucleus with several sperm, and being haploid tissue. So पेरिस्पर्म क्या चीज़ है और एंडोस्पर्म क्या है, ये चीज़ें समझनी होगी। ठीक है, सो यहाँ पर एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड वन, isn't it? And पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस, isn't it? सो न्यूसेलस जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। दोनों रिजर्व फूड के तौर पर ही है। तो हैविंग नो रिजर्व फूड ये कहना गलत हो जाएगा। बीइंग डिप्लॉइड टिश्यू, ये पेरिस्पर्म के लिए सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है? इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा एंडोस्पर्म के बारे में भी नहीं है और पेरिस्पर्म के बारे में भी नहीं है। बीइंग हैप्लॉइड टिश्यू, ना पेरिस्पर्म हैप्लॉइड है ना एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है। सो राइट आंसर विल बी अ डिप्लॉइड टिश्यू। So B is the right answer. Next, seed coat is not thin and membranous. Not thin, membranous in. तो किस में जो है वो seed coat thin और membranous नहीं है? not कहा है। So options are coconut, groundnut, gram, maize. तो काफ़ी सिंपल सा जवाब है इसका, it is coconut। ठीक है, कोकोनट के फ्रूट के अंदर जो होता है जिसे हम खाते हैं, तो उसका सीड कोट कैसे? इज इट थिन? नो, इट इज क्वाइट टफ, इजंट इट? सो कोकोनट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय। अब सीड की वायबिलिटी टेस्ट करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, नाउ दिस इज द आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी, सो बेटर यू ट्राई टू मेमोराइज द नेम। इट्स नेम, द राइट आंसर इट इज सी। इसका सही जवाब है सी। It is 2,3,5 triphenyl tetrazolium chloride. Okay, so this is the chemical with which the viability of the seed, that seed is it viable or not, is tested. So for those who are interested, they can highlight this name. Then next, albuminous seeds store their reserve food mainly in. So quite simple, very simple question है कि अगर सीड अल्ब्यूमिनस है तो वो उसका फूड कहाँ पे स्टोर करेंगे? पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, कॉटलेडॉन, हाइपोकॉटिल। ठीक है, अब अल्ब्यूमिन और एंडोस्पर्म एक जैसे हम मीनिंग से यूज करते हैं। सो द राइट आंसर इज एंडोस्पर्म। ठीक है, देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू ऐसा पूछता है। ठीक है, सो लेट अस रीड इट आउट। सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम सोमैटिक सेल। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में मतलब जहाँ पर एम्ब्रियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बन रहा है बल्कि सोमैटिक सेल से बन रहा है, उसके बारे में गलत क्या है? सो सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सोमैटिक सेल सीम्स टू बी ट्रू। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सोमैटिक एम्ब्रियो इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियो। मतलब जिस तरीके का जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है उसी के जैसा पैटर्न सोमैटिक एम्ब्रियो में भी है, ये भी ठीक ठाक लगता है। सोमैटिक एम्ब्रियो कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब ये चीज सोचनी पड़ेगी। और लास्ट, सोमैटिक एम्ब्रियो इज इंड्यूस्ड यूजुअली बाय ऑक्सिन सच एज 2,4-D।
और 2,4-D प्रोवाइड करके सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को हम मोटिवेट प्रमोट कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कहता है चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर पहले तो चीज़ समझनी होगी कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या, इजंट इट। तो पहले हमें ये समझना होगा कि एम्ब्रियो कौन सी सेल से बनता है। सो योर आंसर विल बी ऑब्वियस, इट इज जाइगोट, इजंट इट। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो. So what is ploidy level of zygote? It is diploid. What is ploidy level of embryo? It is diploid. Okay, तो अब ऐसा ही एम्ब्रियो अगर बनना है तो वो बनेगा तो किसी डिप्लॉयड सेल से ही बनेगा। अब प्लांट में डिप्लॉयड और क्या क्या होता है, तो बाकी एंटीपोडल, सिनर्जिड, एग, मेल गैमेट, ये चीज़ें तो हैप्लॉइड है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है। तो बाकी की जो सोमेटिक सेल है जैसे सेल्स ऑफ न्यूसेलस, वो भी कैसे है, डिप्लॉयड है, लेकिन वो कौन से सेल बन गए, सोमेटिक सेल बन गए, इजंट इट। तो सोमेटिक सेल की जो डिप्लॉयड है उनसे डायरेक्टली एम्ब्रियो बनना, इसे हम कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो नॉट ट्रू पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है सोमेटिक एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम सोमेटिक सेल, दिस इज ट्रू। नॉट ट्रू माने हमें फॉल्स की बारे में जानकारी पूछ रहे। सेकेंड, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो कंपेरेबल, ये भी सही है। सोमेटिक एम्ब्रियो कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर, नो, माइक्रोस्पोर से बन सकता है क्या, नहीं, माइक्रोस्पोर तो हैप्लॉइड होते हैं ना, तो हैप्लॉइड से कैसे बनेगा। सो दिस इज वन फॉल्स, बट हियर इट इज राइट आंसर। और ये 2,4-D, ठीक है, जिनको पता नहीं है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे इंड्यूस किया जाता है, दे कैन रिमेंबर दिस वन। आई होप यू नो 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोमिथॉक्सी एसिटिक एसिड, isn't it? So D is also true but not a right answer. Right answer is this wrong thing. Next, a drupe develops in, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, ड्रूप कौन से प्लांट में पाया जाता है। ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट, सिंगल सीडेड फ्रूट को ड्रूप कहा जाता है। सो हियर बेस्ट एग्जांपल इट इज मैंगो। ठीक है, वैसे तो रॉन्ग बटन आई हैव क्लिक्ड। सो ड्रूप डेवलप्स इन, so answer is mango. Wheat, it is single seeded but it is caryopsis, not the drupe. Okay, pea and tomato, ठीक है, now these are multiple seeded, so single seeded it is drupe, isn't it? So right answer is mango. Next, now questions on apomixis and polyembryony. So nucellar polyembryony is reported in, तो अभी जिसे हमने सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहा था उसी के जैसा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो सीड के अंदर होना, एक से ज्यादा एम्ब्रियो इनसाइड द सीड, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी, इजंट इट। सो नाउ दिस इज क्वाइट सिंपल, और ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि पॉलीएम्ब्रियोनी अगर देखनी है तो सिट्रस के सीड को स्क्वीज करने के लिए बोला गया है। सो राइट आंसर इज सिट्रस। ओके, नीड नॉट टू थिंक अबाउट रेस्ट ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में से आता है क्वेश्चन। ओके, सिट्रस, उसके सीड जो होते हैं अगर उनको स्क्वीज करते हैं तो उसमें से हमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो देखने को मिल सकते हैं, मतलब एक तो एम्ब्रियो रहेगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, लेकिन बाकी के एम्ब्रियो जो है, मतलब उसका अगर हम ये ऐसा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं तो इसके इर्द गिर्द ऑल अराउंड इट क्या है, न्यूसेलस के सेल्स है, तो न्यूसेलस के सेल भी डिप्लॉयड है। अब वो अगर सेल इंक्लूड करके अंदर आ जाते हैं, कहाँ से, कौन से वाले सेल, न्यूसेलस के जो सेल है वो अगर छेद करके एम्ब्रियो सैक को अंदर आ जाते हैं, तो अंदर तो ऐसा एनवायरनमेंट है कि जो भी कोई डिप्लॉयड रहेगा इट विल टर्न इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये फर्टिलाइजेशन में पार्ट ले रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अब बाकी के जितने हैप्लॉइड थे वो सब डिसइंटीग्रेट हो गए, जैसे यहाँ पर सिनर्जिड थे, इधर ऊपर 3 एंटीपोडल थे, सब डिसइंटीग्रेट हो गए। जो ट्रिप्लॉइड है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो रहा है और जो डिप्लॉइड है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो इनसाइड अ सिंगल सीड, अदरवाइज सिंगल एम्ब्रियो इनसाइड द सिंगल सीड इज द जनरल नेचुरल नॉर्मल इवेंट। ओके, सो सिट्रस इज द राइट आंसर. Next, which one of the following plants shows a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other? So options are banana, yucca, hydrilla and viola. तो ये क्वेश्चन जो आता है वो इस चैप्टर से भी है और इकोलॉजी से भी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोज रिलेशनशिप पूछी गई है किसकी किसकी, स्पेसीज ऑफ ओ मॉथ, मॉथ जानते हैं आप, ठीक है, बटरफ्लाई होते हैं, सो कलरफुल होते हैं, और ये वाले जो होते हैं थोड़े से डल कलर वाले मॉथ, और
नन ऑफ द टू, एक प्लांट की मौत के साथ ऐसी रिलेशनशिप है, ऐसी फुल्ली डिपेंडेंट है कि वो दोनों एक दूसरे के अलावा अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन कह सकते हैं आप इसे। तो वो कौन सा है? इट इज यूका प्लांट। ठीक है, ये यूका प्लांट और मौत, ये एक दूसरे के बगैर इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का मौत है जो यूका में पॉलिनेशन को पॉसिबल करता है, और मौत की जो लार्वल स्टेज होती है उसके जो उसे जो ये प्लांट के जो फ्रूट के अंदर के सीड है वो कुछ खाने को मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये लार्वी वो प्लांट के फ्रूट के अंदर ग्रो करती है। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी यूनिट एज वेल एज दिस वन। तो दोनों में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। राइट आंसर इज यूका। डिड नॉट टू थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट वन, pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having temperature of। ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनके लिए बहुत आसान सवाल है। इट इज -96 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज, यहाँ पर सी ऑप्शन शायद नहीं गया था, यहाँ पर डाल देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज अ फॉसिल। तो पोलन फॉसिल के तौर पर प्रिजर्व होने में किस चीज़ का हाथ है, किसका कंट्रीब्यूशन है? सॉइल कंटेंट, सेलुलोजिक इंटाइन, पोलन किट, स्पोरोपोलिन। तो फिर एक बार उन्हीं चीज़ों पर क्वेश्चन आप बार बार देख रहे होंगे, क्या हो सकता है इसका? स्पोरोपोलिन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, एंजाइम उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, और ना ही कोई एसिड अल्कली का उन पर कुछ इफेक्ट होता है, ना ही टेम्परेचर पे, और इसीलिए फॉसिल्स में भी पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। तो जो पोलन ट्यूब दो मेल गैमेट लेकर के निकली है, तो उसमें का एक मेल गैमेट सिनर्जिड में मिल जाता है। तो अगर ये हम ऐसा बना देते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है, तो ये हो गया एक, क्या कहेंगे इसे, फीमेल गैमेट एग, और ये हो गए सिनर्जिड। ठीक है, अब सपोज पोलन ट्यूब यहाँ पर ऐसी आती है और एक मेल गैमेट इधर रिलीज करती है और एक मेल गैमेट इधर रिलीज करती है, तो इस वाले मेल गैमेट का क्या होगा? ऑब्वियसली उसका क्या हो जाएगा, ये मेल गैमेट का क्या होगा? दिस विल फर्टिलाइज दिस एग, और ये मेल गैमेट का क्या होगा? इट विल फर्टिलाइज विद दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो all fuse with the egg, one fuse with the egg, others fuse with synergy nucleus, one fuse with the egg, other fuse with central cell nuclei, last one fuse with the egg, other degenerate in the synergy. So right answer is, yes, it will be B or C. It will be C, I think. One fuse with the egg and other fuse with the central cell nuclei. Okay, C is the right answer. Next, question number 45. Which of the following statement regarding post-fertilization development in a flowering plant is incorrect? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में कौन सी चीज जो है वो इनकरेक्ट है, माने फॉल्स है। ठीक है, क्या है फिर? जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ट्रू। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, सोचना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। ओव्यूल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक, इज इट सो? ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, अब ये भी, ये तो कंपलसरी सही है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। अब सोचने वाली बात है सिर्फ बी और सी के बारे में। ठीक है, बी और सी थोड़े से एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं। नाउ बी क्या कहता है? सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट डेवलप्स। ओके, ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये गलत होगा। तो एम्ब्रियो सैक कहाँ, किस चीज से बन रहा है? एम्ब्रियो सैक बनता है फीमेल गैमेटोफाइट से, और ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड है। ओव्यूल किस चीज में कन्वर्ट होता है? सीड में। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक किस चीज से बना है? वो बना है फीमेल गैमेटोफाइट से। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट टर्न इनटू एम्ब्रियो सैक। ओके, ये ऐसे होना चाहिए। सो दिस इज द फॉल्स थिंग, बट राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ऐसा, अदरवाइज न्यूसेलस डीजनरेट बट द रेमनिंग न्यूसेलस that is called as perisperm. Okay, so here neat question came to end. The names question, कैस्मोगैमी refers to a condition. कैस्मोगैमी क्या कंडीशन है, किस चीज को कैस्मोगैमी कहते हैं? सो
Flowers remain closed, flowers absent, flowers open, flowers are gamopetalous. So right answer A is right opposite or contrast to that of क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी से अपोजिट. क्लिस्टोगैमी में फ्लावर्स क्लोज रहते हैं और जब फ्लावर खुलते हैं ओपन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैस्मोगैमी. सो सी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज, मेरे ख्याल से क्वेश्चन छिप गया. व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और अपोमिक्सिस में कॉमन चीज क्या है? ऐसा ही क्वेश्चन. सो लेट अस रीड आउट द ऑप्शन. बोथ आर एप्लीकेबल ओनली टू डाइकॉट प्लांट्स. तो सिर्फ ये चीज डाइकॉट में पाई जाती है? गलत है, ये ऐसा तो नहीं है. बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज. अभी एपोमिक्सिस के लिए फ्लावरिंग को बाईपास करना जरूरी नहीं है. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन जो अपोमिक्सिस होता है उनमें फ्लावरिंग सब चीज़ें कॉमन होती है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन सब चीज़ें हो जाती है. तो इसमें फ्लावरिंग को बाईपास नहीं हो सकता. बोथ ऑकर राउंड द ईयर. दोनों साल भर होने वाली चीज़ है. क्या हम ऐसे कह सकते हैं? नो, वी कांट से लाइक दैट. क्योंकि अगर फ्लावरिंग हो रही है तो राउंड द ईयर कैसे हो सकता है? फ्लावरिंग तो सीजन डिपेंडेंट है. ठीक है. लास्ट, बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट. हाँ, ये चीज कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक तरीके से क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो वैसे भी असेक्सुअल ही है. वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ जैसे पार्ट यूज होते हैं. और एपोमिक्सिस में चाहे फ्लावर तैयार हो लेकिन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वो है जो है वो नहीं हो रही है. तो ये चीज दोनों में कॉमन है. कौन सी? दैट दे प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट बिकॉज देयर इज नो मियोसिस एट ऑल. क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब गैमेट ही तैयार नहीं हो रहे. ठीक है. और कोई भी जो डिप्लॉइड सेल है उसी से काम हो जा रहा है. तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से वेरिएशन नहीं आएंगे. और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो वैसे भी माइटोसिस की तो देन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन फ्लावर्स आर. तो इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती कब? व्हेन फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, आइदर ए और बी. सो ऑप्शंस ठीक से समझने होंगे. बाइसेक्सुअल माने फ्लावर में दोनों चीजें हैं, दैट इज एंड्रोशियम गाइनोशियम. इंटरसेक्सुअल माने हाफली डेवलप, हाफ डेवलप वी कैन से. ऐसी तो चीज होती नहीं है फ्लावर्स में. ठीक है. यूनिसेक्सुअल ये हो सकता है आइदर ए और बी. अभी ए और बी का खेल यहाँ पर नहीं चलेगा. ओके, वी कांट से ए और बी बिकॉज इंटरसेक्सुअल मीन्स स्टराइल. अब स्टराइल में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. सो राइट आंसर इज यूनिसेक्सुअल. ठीक है. इमैस्कुलेशन क्या चीज है? व्हाट इज दिस इमैस्कुलेशन? इट इज रिमूवल ऑफ मेल पार्ट सो दैट इन हाइब्रिडाइजेशन इट कैन सर्व एज अ फीमेल पेरेंट, इजंट इट? हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में अगर हमें फीमेल पेरेंट बनाना है और प्लांट बायसेक्सुअल है तो हमें इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा. लेकिन अगर फ्लावर ही खुद यूनिसेक्सुअल है, उसमें सिर्फ एक टाइप के फ्लावर है जिसमें सिर्फ मेल है और दूसरे इसमें सिर्फ फीमेल है, तो हमें फीमेल पेरेंट बनाने के लिए उसका मेल गैमेट या सॉरी मेल पार्ट यानी स्टेमन निकालने की जरूरत नहीं है. कब? जब वो यूनिसेक्सुअल है. So right answer is C. Question number 4. Geitonogamy involves. Options are fertilization of a flower by the pollen from anther. Sorry, fertilization of a flower. Geitonogamy फिर एक बार वही question. Fertilization of a flower by the pollen from another flower of a same plant. I think this is the answer itself. Okay. Fertilization of a flower by the pollen from another flower of the same plant. वही तो चीज़ है गिटनोगैमी. सो आंसर तो हमें यहीं पर मिल गया, फिर भी पढ़ लेते हैं. फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर, ये तो ऑटोगैमी हो गया, तो ये तो नहीं बन सकता. नो, दैट नॉट पॉसिबल. थर्ड, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन सेम पॉपुलेशन, वही क्वेश्चन है, रिपीट. ठीक है. लास्ट क्या है? डिस्टेंट पॉपुलेशन, यही सेम का सेम है. वैसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था. मतलब नीट के क्वेश्चन एम्स में रिपीटेडली पूछे जाते थे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2016 से. स्पोरोपोलिनिन कैन विस्टैंड, यही भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. विस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये गलत है. ठीक है. करेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है, तो ये तो गलत हो गया. वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी बेयर कर लेता है. डिग्रेडेड बाय एंजाइम, नो. स्पोरोपोलिनिन मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक, नो. सो व्हाट इज ट्रू? दैट इट कैन विस्टैंड बोथ, दोनों चीजें बर्दाश्त कर लेता है, हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है. Ploidy level of a nucellus, endosperm, polar nuclei, megaspore mother cell, female gametophyte respectively. तो हम एक एक चीज यहीं पर अगर लिखते थे तो इजी हो जाएगा. न्यूसेलस इट इज डिप्लॉइड, एंडोस्पर्म इट इज ट्रिप्लॉइड, फीमेल गैमेटोफाइट इट इज हैप्लॉइड. हो गया.
न्यूसेलस एंडोसोम, नहीं ये रह गई, अंदर की लाइन छोड़ दी ना हमने। पोलर न्यूक्लियर हैप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड। ठीक है, हो गया पूरा। तो क्या आ रहा है सीक्वेंस फिर 2n 3n, फिर उसके बाद में क्या है n, फिर 2n और फिर n। ओके, 2n 3n 2n 3n, फिर उसके बाद में n 2n और लास्ट में फिर n 2n n। तो पहला सही लग रहा है, ठीक है। इस पर ये गलत है यहाँ पर, बाकी की तो बात नहीं हो सकती। 2n 3n ये इसमें ये गलत है, राइट। सो राइट आंसर है दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, diagram of hypogynous, perigynous and epigynous are given respectively. Find out the correct option with examples for the given diagram A to D. ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछने वाली ट्रिक यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, पेरीगाइनस वाले फ्लावर की कंडीशन बताई है, 4 डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, तो इनको हमें एग्जाम्पल से कोरिलेट करना है। ठीक है, तो पहले तो डिसाइड कर लेते कि कौन से फ्लावर, कौन सी डायग्राम किस चीज़ की है, इजंट इट। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। लेट मी पिक अप द प्रॉपर पेन, क्योंकि अभी वाइट बैकग्राउंड पे लिखना है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ओवरी, और ओवरी ये पहली डायग्राम में ये यहाँ पर ओवरी, और ओवरी के नीचे जा रहे जो बाकी के जो फ्लोरल वर्स है वो पूरे ओवरी के नीचे जा रहे, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, ओवरी कैसे हो गई, सुपेरियर हो गई, इजंट इट। ओवरी सुपेरियर मतलब ये कैसे हो गए, पूरे हाइपोगाइनस हो गए। ठीक है, ओवरी के नीचे, गाइनोशियम के नीचे सब अटैच है, सो दिस बिकम हाइपोगाइनस। दूसरी डायग्राम में हम क्या देखते हैं, ओवरी नीचे हो गई और ये सब लोग जो है ऊपर है, तो ये क्या हो गया, एपीगाइनस हो गया, माने ओवरी इंफेरियर। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, इर्द गिर्द है पेरीफेरी पर, सो दिस इज पेरीगाइनस। ओके, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, डी वाली कंडीशन। यहाँ पर भी जो पूरे पेटल्स वगैरह है, यहाँ पर भी हमें ओवरी कैसे देखने को मिल रही है, पूरी नीचे है, इंफेरियर ही है। ठीक है, तो ये भी इंफेरियर ओवरी, माने इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, एपीगाइनस बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन कौन से प्लांट में है, राइट। सो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। सो दोज हु हैव बेटर मेमोराइजिंग एबिलिटी दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन ओनली। Those who cannot, they shouldn't touch such question if they are weak at memorizing. Okay, अंदाजे के भरोसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने चाहिए। आई से मेनी टाइम्स, मैं कई बार ऐसी चीज़ें बोलते रहता हूँ। सो शायद आपको ये कुछ चीज़ें जो मैंने मॉर्फोलॉजी में आपको याद भी करवाई थी, इनके शॉर्टकट भी बताए थे। ठीक है, तो हाइपोगाइनस माने क्या हो गया, सुपेरियर ओवरी हो गई। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी मैंने शायद आपको दिया था, क्या था वो, चाइना का ब्रिंजल मस्त सुपर, याद आ गया, सुपीरियर के लिए। तो मस्त माने मस्टर्ड था, सो दिस मस्ट बी मस्टर्ड। तो यहाँ पर एक तो ए में है और डी में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एपीगाइनस कंडीशन है, माने ओवरी इंफेरियर है। ठीक है, तो एक था ये, अभी ओवरी यहाँ पर कैसे हो गई, इंफीरियर हो गई। तो पेरीगाइनस का एक मैंने शायद आपको याद कराया था, प्लम रोज पीच पेरी, इजंट इट। तो बी और सी दोनों अगर हम डायग्राम को देखते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि दोनों में लगभग सेम कंडीशन देखने को मिल रही है, ना कि ये एपीगाइनस कंडीशन हम इसे नहीं कह सकते। I have to adjust this one. बेसिकली दोनों में एक ही चीज़ हमें देखने को मिल रही है, सिर्फ थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस है। जितना इंफेरियर यहाँ पर एग्जैक्टली दिखता है, उतना यहाँ पर नहीं दिखता है। ठीक है, सो दिस मस्ट बी पेरीगाइनस। ठीक है, तो पेरीगाइनस के एग्जाम्पल जो है वो कौन से है, प्लम रोज पीच पेरी। ठीक है, तो ये बी और सी प्लम और रोज होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और जो डी,
जहाँ पर वो completely inferior ovary दिख रही है. So it must be गावा, isn't it? So right answer is A. ओके, अब यहाँ पर क्या गलतियाँ है, ये कुकुम्बर नहीं है. ठीक है, इसका अगर आपको याद होगा इन्फीरियर का, उसका क्या बनाया था हम लोगों ने, शॉर्ट फॉर्म कुछ याद आता है, वो था क्या था, गावा ब्रिंजल इन्फीरियर, ऐसे कुछ बनाया था मैंने. आप मॉर्फोलॉजी का एक बार रिकैप कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा. ठीक है, सो गावा ब्रिंजल इन्फीरियर, तो उनमें इन्फीरियर था, तो ये जो है चीज़ इसमें गलत क्या हो गया. फिर प्लम रोज ठीक है, लेकिन ये कुकुम्बर, गावा कुकू ब्रिंजल इन्फीरियर ऐसा बनाया था, तो ये कुकुम्बर नहीं हो सकता है यहाँ पर, ये गलत हो गया इसमें. चाइना रोज का भी ये गलत हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर गावा भी गलत है, रोज़ यहाँ पर ठीक है, मस्टर्ड ये यहाँ पर गलत है तीसरे ऑप्शन में. लास्ट ऑप्शन में मस्टर्ड ठीक है, रोज़ ठीक है, प्लम ठीक है, लेकिन ब्रिंजल ये गलत हो जाएगा यहाँ पर. ओके, सो यहाँ पर ब्रिंजल, सो राइट आंसर इज ए. ओके, जो ये मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन एक्चुअली बिलोंग करता है. ये आपको अगर अच्छे से आपने वो जो मैंने शॉर्टकट दिए थे वो अगर याद कर लेते, एनसीईआरटी में जितने दिए उतने ही कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन बहुत अच्छे से कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स फ्रूट. फॉल्स स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है, फॉल्स फ्रूट की बात हो रही है. अब फॉल्स फ्रूट कब तैयार होते हैं, फॉल्स फ्रूट की डेफिनेशन क्या है. तो जहाँ पर देखिए फ्रूट बनना चाहिए ओवरी से, लेकिन ओवरी के अलावा अगर कुछ पार्ट है फ्लावर के कि जो फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन दैट केस दैट फ्रूट इज सेड टू बी अ फॉल्स फ्रूट. सो इफ यू आर रेड एनसीईआरटी प्रॉपरली, you will jump at the answer, and that is apple and strawberry. Okay, इनमें जो होता है वो थैलेमस का पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में, दैट इज वाई देयर फ्रूट इज सेड टू बी फॉल्स फ्रूट. ओके, नाउ फ्यू assertion reasons. Let us read out. First assertion, Chasmogamus flowers require pollinating agent. Chasmogamus flower माने जो फूल खिलते हैं तो उनको पॉलिनेटर की ज़रूरत है. ठीक है, सही है. रीज़न, क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन. क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो अपने सेक्स ऑर्गन एक्सपोज नहीं करते. ठीक है, क्योंकि वो ओपन ही नहीं होते, मतलब वो खोलते ही नहीं है, तो ये भी सही है. लेकिन क्या ये एक दूसरे के लिए एक्सप्लेनेशन बन सकता है? नहीं. सो आंसर शुड बी फॉर सच वन इट इज़ बी, इजंट इट. दोनों चीज़ें सही है, लेकिन क्या दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है? नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. ट्रू, सही बात है. सेकेंड रीजन क्या बोलता है, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स टू फ्यूजन. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में टू फ्यूजन होते हैं, ये भी सही बात है. लेकिन क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने का रीजन है? रीजन कह सकते हैं क्या इसे? नहीं. तो वही चीज़ आती है फिर एक बार, दैट इज आंसर विल बी बी. ऑप्शन नेक्स्ट, सॉरी, थर्ड वन, assertion, endosperm is a nutritive tissue which is triploid. सही बात है. रीजन, एंडोस्पर्म इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू सेकेंड मेल गैमेट. इट इज यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, तो काफ़ी लंबा खींच गया इसका रीज़न इस बार. ठीक है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है और वो ट्रिप्लॉइड है, ये हो गया असर्शन जो कि सही है. रीज़न क्या कहता है, वो कैसे तैयार हुआ है, फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू सेकेंड मेल गैमेट. So this is the proper reason that why it is triploid. Okay, and why it is nutritive, because it is consumed by developing embryo. So in my opinion answer must be A, क्योंकि सब चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है जो assertion में दी वाली थी. And lastly, groundnut and peas are non-endospermic. Groundnut and peas are non-endospermic, or they do not synthesize endosperm. Is it so? Assertion तो ठीक है, क्योंकि डाइकॉट जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं. क्यों नॉन एंडोस्पर्मिक? एंडोस्पर्म तैयार नहीं होता है क्या? नहीं, तैयार तो होता है, बट इट इज देन कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो. कॉटलेडॉन में वो फूड पूरा आ जाता है. ऐसा नहीं कि उनमें एंडोस्पर्म तैयार नहीं होता है. तो एसर्शन सही है, बट लेकिन रीजन जो है वो एज इट इटसेल्फ एज इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो फॉर सच इट आंसर इज सी. सो total I think we have studied how many question, 46 plus 12, 58 question we have completed. Okay, so it is 1 hour and 8 minutes as I told you.
So this is plenty of time I've taken to cover all these things, and you can understand if we have discussed this one with the view, means with the regular method of discussion, it would have surely taken 2 hours. Okay, so that is why I've decided to go for just one way explanation. I hope you can understand the reason. And one thing, particularly those who have attempted the corona test series in last 2 months. So yesterday there was the plan of the test, but in last Sunday, not just this one, but the last Sunday before this one, very few students appeared, attempted, and very few students shown their interest, and that is why I have you can say cancelled the test and waited that at least somebody will say, "Sir, आज test था क्या हुआ?" But just one, I think she is Prutha Kalyankar, somebody. आय डोंट रिमेंबर हर नेम. तर फक्त तीच एक होती की जिने याच्याबद्दल हे केलं, बाकी कोणी आठवण सुद्धा केली नाही. सो दॅट वॉज नॉट दॅट मच इन motivational thing for me. Okay, so if you put your opinion in comment section, I can decide that to go for that test or just to cancel that entire plan. So those who are coming to this video, they can put their opinion in the comment section. Comment section is always on, no problem with that. Live chat is just disabled. Okay, so you can comment your opinion regarding this chapter. If you have got any doubts, you know my WhatsApp number. It is actually all the time on my head in the other screen where we discuss the question. तो वो स्क्रीन पर मेरे सर के ऊपर से हमेशा वो स्क्रॉल होता है, उस पर भी मेरा WhatsApp नंबर है, which is 8552065365. So you can WhatsApp me, or you can put your opinion in comment section regarding that corona test series, as well as some doubts or queries if you have from this chapter. Okay, so again tomorrow we'll meet with the next chapter. Till then, have a nice time. Thank you very much. Bye.